Details typically included in a job description, job title, and objective. ये हो गया है मैम, ये हो गया स्लाइड, ये स्लाइड हो गया है मैम। Hmm, data orientation, डिटेल्स और टिपिकली details इंक्लूडेड इन अ जॉब working conditions. डिस्क्रिप्शंस। ये भी ये भी तो आप पढ़ा दीजिए। वर्किंग कंडीशंस, नो नो नो, परफॉर्मेंस आई एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप, typically included details डिसीजन मेकिंग। typically included in a job descriptions. Okay, remote expectations, relationship, decision making, authorizations of the level decision making authority. I think I have already completed this slide also. Go to the next slide, जॉब ma'am. हाँ, specification. स्पेसिफिकेशन हाँ, yes. यहाँ से होगा सर। हाँ. So good evening to all of you for गुड today's इवनिंग session. सर। Good evening. Mhm. So today we're going to talk about the job specification. Specification is in the sense you can say it as a choice, you can say it as a different group, different divisions. That's all come under job specification. Okay, customization जिसे हम कहते हैं, customizations as per your requirement. You can specifically mention some points, some skill in a written statement, some extra co-curricular activities, some extra qualification, some extra hard skill. These all are the specification areas where you need to fill up all these points. Okay. आप कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे, ये ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन से आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल glassdoor.com एक वेबसाइट है, उसके बाद एक और है ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, वो ग्लासडोर, GLASSDOOR, glassdoor.com. इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो shine.com से भी कर सकते हो। एक्चुअली shine.com इज अ कंसल्टेंसी फॉर्म, is a consultancy firm. They doesn't ask for any money or remuneration, but the company, जो मिडिल मैन जिसे कहते हैं, शाइन.com कभी पैसा नहीं मांगता, बट उनका जो मिडिल मैन है, जो आपसे कोऑर्डिनेट करवा के देंगे, आपको फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे, या आपको जो जॉब है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देंगे आपको, तो वो आपसे ना कुछ पैसा मांगते हैं। दिस इज अ वेरी, मतलब थर्ड क्लास, ये अच्छी बात नहीं है। अदरवाइज शाइन.com का रिव्यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जॉब पोर्टल में बहुत अच्छा है। रिव्यूज अब अगर आप पढ़िएगा तो रिव्यूज, अच्छा रिव्यूज है। स्टूडेंट ने कहा कि यस, वी आर गेटिंग कॉल, वी आर गेटिंग जॉब फ्रॉम शाइन.com। ओके, और बहुत सारा वेराइटीज है शाइन.com में, बहुत वेराइटीज है, स्पेसिफिकेशन बहुत है। तो shine.com में जब आप कोई जॉब सेलेक्ट करते हो, तो लॉट थिंग्स दे आस्क स्पेसिफिकली। अगर आप उसमें नेम, क्वालिफिकेशन, स्किल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब अगर भर देते हो, तो ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा एरियाज है जहां पर आपको फॉर्म फिलअप, जहां पर एरियाज वो आपसे मांगते हैं, जहां पर एरिया आपसे पूछते हैं, दे यूज्ड टू आस्क दोस थिंग। So job specification is based on job description. Okay, the way you describe your skill, the way you describe your criteria, way you describe your preferences, according to that, the specifications are there. For example, suppose I am applying for a job in Bangalore, in the state, in other university, and I'm going through online job portal, that is shine.com or indeed.com, naukri.com. I'm going with this site, I'm going from this sites, okay, using this site to visit to that particular college, presidency college. Say for example Bangalore में एक university है, presidency university, I want to apply it there, I want to apply, okay. So I am going through online job portal, may shine.com or any other job, online job portal. Now whenever I describe my professions, okay, now according to my professions they will going to customize, and they will going to show some specific areas
where I need to fill up all those. Say for example, though I have an experience, so basically they will going to ask me the level of experience, the years of experience, the immediate joining, then after that your uh, resignation letter, resignation time period for resignation. These are the specific areas they will going to ask. Apart from that, many things they will going to ask. If I have some industrial experiences and all, they will going to ask me on industrial questions. How much years of industrial experiences do you have? If which are the areas? What are the? Please describe the areas where you have worked. What type of work? बहुत सारा स्पेसिफिकेशन आपसे वो मांगेंगे, क्यों आपने उसी तरह से उस चीज को फिलअप किए हैं. दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन पार्ट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डेफिनेशन की बात करें, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर में समझाया, लेकिन अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? इट इज अ रिटन स्टेटमेंट क्वालिफिकेशन. इट इज एक्चुअली a written statement जहां पर your qualification, traits means personal traits का मतलब होता है your apart from qualification, your cognitive skill. मैंने इससे पहले आपको समझाया था cognitive skills क्या है. The skills which are been as a which are been utilized as an experience or as an skill basis, they are called cognitive skill. Suppose learning skill, ओके, लिसनिंग स्किल, ये एक कॉग्निटिव स्किल है, ये पर्सनल ट्रेट में गिना जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक स्किल है, लिसनिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल, ये बहुत बड़ा है. रेजिलियंस ये भी है, वो नॉन कॉग्निटिव स्किल में चला जाता है. तो ये जो जितना मैंने बताया आपको, एम्पैथी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, ठीक है, उसके बाद स्किल, ये सब आपका ना कॉग्निटिव स्किल में गिना जाता है. दीज ऑल आर द कॉग्निटिव स्किल्स दैट यू विल हैविंग. एंड फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कॉग्निटिव स्किल में आता है. आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, दैट एन इंडिविजुअल मस्ट पोसेस टू परफॉर्म द जॉब ड्यूटीज एंड डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ यू डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर द टाइम in other university, you need to other industries or other factories, you need to or any other organization, you need to mention that. ठीक है. तो जॉब स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं, एक रिटन स्टेटमेंट होता है जहां पर बहुत सारा डिटेल्स आपसे मांगा जाता है. जैसे आपका एक्सपीरियंस हुआ, स्किल हुआ, आपका कॉग्निटिव स्किल्स हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले जहां आप काम करते थे उसका कुछ एक्सपीरियंस आप बताइए, वहां क्या काम करते थे, किसके अंडर में काम करते थे, आपका जॉब रोल क्या था, जॉब पोजीशन क्या था, सैलरी क्या था, एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितना मांग रहे हो. दिस ऑल कम्स अंडर द स्पेसिफिकेशन पार्ट, जो आपको रिटन स्टेटमेंट में देना होता है. दिस इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? जॉब क्वेश्चंस देख लो, कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है तो पूछो. सर मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए सर. जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है. जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन ओके जॉब ओके. डिस्क्रिप्शन होता है या रिटन स्टेटमेंट होता है जहां पर आपका क्वालिफिकेशन से लेके आप पिछले कंपनी में क्या काम करते थे, किसके अंडर में काम करते थे, क्या आपका जॉब रोल था, क्या पोजीशन था, कितना सैलरी आपको मिल रहा है, कितना एक्सपेक्टेड सैलरी आप चाहते हो, ये सारा कुछ डिस्क्राइब करके आपको लिखना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड द जॉब ओके स्पेसिफिकेशन. ओके. एनी डाउट? क्लियर सर. नो सर. Okay. Tanuja, do you have any doubt? No, sir. Okay. Ma'am, please go to the next slide. जॉब स्पेसिफिकेशन कवर्स. क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन में कवर होता है, किस एरियाज को हम कवर करते हैं. ठीक है. देखो, एक बात मैं आप लोग दोनों को बता देना चाहता हूं. जैसे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप दोनों हमें बताइए, मुझे बताइए कि व्हेनेवर वी विजिट द रेस्टोरेंट, हम कैसे पता कर सकते हैं कि दिस रेस्टोरेंट इज अ वेरी गुड? बताओ तो, बताओ.
आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू। आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, वीकली जाते होंगे, वहां पर जाके फूड ऑर्डर करते ये होंगे, खाते तो होंगे। तो हम्म आप लोग जैसे रेस्टोरेंट में जाते होंगे, पहला आपका कैसा रहता है? मतलब आपका क्या है, आप क्या देख के जाते हो, पहले बताओ। आप रेस्टोरेंट जाते हो, क्या देख के जाते हो? सर, उसके फूड की क्वालिटी, जो हम कुजीन्स, जो मतलब बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं इसमें चार्जेस तो बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन टेस्ट वो नहीं रहता, एम्बियंस। ये सनुजा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस? गई Yes, तो sir. होंगी गई तो होंगी ना, कम से कम चाउमीन या बिरयानी खाने तो गई होंगी ना कभी भी रेस्टोरेंट। तो क्या Yes, देख के आप जाते हो, क्या देख के जाते हो? सर घर का खाना डेली खाकर बोर हो जाते थे तो, या फिर कोई ओकेजन पर। घर का खाना बोर हो जाते हैं तो हम कभी ओकेजनली चले जाते हैं। यार ये यस। क्या जवाब हुआ यार, सब कोई नो घर का सर, खाना। घर का खाना डेली डेली बनता है तो लाइक बाहर से कुछ खा लेते हैं, या फिर कोई ओकेजन हो गया, बर्थडे हो गया या फिर एनिवर्सरीज हो गया तो आज जाते का हैं। क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन तनुजा तू समझी नहीं। मेरा क्वेश्चन था कि आप क्या देख के रेस्टोरेंट जाते हो। ठीक है, आपका घर का खाना बोरिंग लग रहा है, इसका मतलब कोई ढाबा उबा में चले जाते होंगे क्या? ढाबा, रोड साइड इटरीज जो होता है, रोड साइड जो ये रहता है, ठेला रहता है, वहीं पर खा लेते हो क्या? राजमा चावल, कड़ी चावल, फिर ये सब पाव भाजी, ये सब मिलता है, वही सब खा लेते हो क्या? मैं बता रहा हूँ, आप अगर कोई रेस्टोरेंट, चलिए आपका घर का खाना आपको बोर लग रहा है, ठीक है, तो आप चलिए आज रेस्टोरेंट जाएंगे, तो आप चूज कैसे करते हो? क्या देख के आप चॉइस करते हो कि चलो ये रेस्टोरेंट जाते हैं, ये अच्छा है? सर जिस रेस्टोरेंट का फीडबैक अच्छा हो वो उसी में जाएंगे ना। हाँ अच्छा, पहले मतलब गूगल रिव्यूज करना, रेटिंग्स देखना, ठीक है, यही ना? सब है कि नहीं। गूगल रिव्यूज करना, रेटिंग्स करना, यही सब देख के आप फिर डिसाइड करते हो कि ये रेस्टोरेंट मुझे जाना है कि नहीं जाना है, यही ना? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, मैंने जो आंसर सोचा था वो कुछ मिला, लेकिन कुछ नहीं मिला। सबसे पहले हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं, हम दो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक है एम्बियंस, ठीक है, उसका सेटअप कैसा है, गेटअप कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेनू कार्ड, ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक criteria to attract the customers. After that, Yes, sir. we will going to reveal the taste. We will going to taste the food, and after that, we will going to give the reviews. ये जो कोट मोड है आपके जब यहाँ से, जैसे आप अगर क्या बोलूं, जुबली पार्क का वो रोड से आप जैसे निकलते हो कोट मोड़ की तरफ, इधर साक्षी चला गया, इधर सोचा मानगो डिमना चला गया, वो कोट मोड़ के उधर रमेश कुल्फी करके एक बहुत पुराना रमेश कुल्फी। होटल है, पता है आपका? यस सर। वहां पर मटन दी हड्डी, मटन अट्टे, वन ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट लेवल। वन ऑफ द मोस्ट प्राइम, वन ऑफ द मोस्ट माउथ लीकिंग, माउथ watering, finger licking, what you can call the dish you will going to have. आप रिव्यूज तो अभी फिलहाल आ रहा है, और रिव्यूज तब दिया जाए तब मिलता है, मतलब कोई कोई अपना गूगल में उसको, अगर वो अपना गूगल में कुछ एरिया लोकेशंस ऐसा डालते हैं पब्लिसिटी बेसिस पे, तब आपका रिव्यूज मिलता है, सब सर कुछ आजकल मिलता तो है। सर और मतलब ऑलरेडी सब पेडेड रहते हैं सर। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, पेड मैं रिव्यू सब रहते हैं। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। तो आप कभी वहां पर खाने चले जाइएगा, you will if you go whenever you enter into that particular place, the overcrowded, bustling chaos of the people will going to experience that what quality of mutton atte they are preparing. What यस is the सर। meaning of this particular dish? The meaning of this particular dish is that they never ever going to use a
single drop of water while preparing the mutton. They use only pure branded sarso oil, and the mutton cooked itself in the water of onion, because whenever you put onion, garlic, ginger paste, they will going to excrete the water level. And apart from that, the mutton itself going to lose its water, loosening its water. So they will make a curry on pure mustard oil, and never ever they will going to add a single drop of water. And this Ramesh Kulfi is so famous in the Jharkhand that food bloggers, not only from eastern region but from northern region also, the food blogger, they used to come, they covered the area Ramesh Kulfi, and they tried for the dishes, and they experienced a huge matlab kya bole fantasy. They experience a huge matlab fantasy, and they experience a huge what you can say demand of that particular food. वहां पर इंसान मतलब वहां पर जो आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ वही डिश खाने के लिए जाता है. ही इज सो फेमस. सब कुछ मिलता है, दाल चावल सब्जी वगैरह मछली, ये सब कुछ मिलता है. बट स्पेशली इट वाज सो स्पेशल दैट वो पूरा झारखंड में फेमस है. एंड वो सिर्फ वहां पर नहीं, वो और भी 2-3 जगह पर उनका आउटलेट है, रमेश कुल्फी करके. सर ये 1970 एक XLRI वाले रोड में खुले हैं अभी नया. यस, ही इज सो फेमस. तो हम किसी को हम जब कोई रेस्टोरेंट जाते हैं तो बेसिकली हम उसका एम्बियंस देखते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड देखते हैं और मेनू कार्ड चेक करते हैं. तो अगर आपसे कोई सवाल करे, द प्राइम इंपॉर्टेंट ऑफ और द बेसिक नीड ऑफ एनी रेस्टोरेंट टू रन इज हिज मेनू कार्ड और उसका सिग्नेचर डिश. यही एक आइटम है, यही दो एक चीज है जिससे वो पूरा रन करता है. हर एक रेस्टोरेंट में हर यही एक सर एक दूसरे से सर अलग करता है एक एक रेस्टोरेंट को. हाँ, हर एक रेस्टोरेंट में जब आप जाइएगा, हर एक रेस्टोरेंट जितना वो डिश निकालता है, हर एक डिश उसका टेस्ट सेम नहीं होता है, लेकिन हर एक रेस्टोरेंट में एक अपना एक सिग्नेचर डिश है. हर एक सिग्नेचर. आप पता नहीं आप लोग मानगो में या फिर जमशेदपुर में या साक्षी मार्केट में फूड कितना एक्सप्लोर किए हो, आई डोंट नो. एक पहलवान चिकन बोल के है, वो रोड साइड ऑलिव ऑयल से चिकन ग्रिल्ड करके भेजते हैं, एंड ही इज सो फेमस. उनका गूगल रिव्यूज आप देख लीजिएगा. मतलब आउट ऑफ 5 4.8 4.9 प्योर ऑलिव ऑयल चिकन वो ग्रिल्ड करके वो सेल करते हैं. फुटपाथ में उनका दुकान है. एंड मतलब शाम के वक्त आप जाइएगा, मिनिमम आपको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स आपको स्टैंडिंग रहना पड़ेगा. And after that they will going to take the order of that. और so soft, so tender और full olive oil. मतलब जितने जिम पट्टी वाला इंसान है, जितना भी हेल्थ कॉन्शियस है, they are making a gathering over there and so delicious to eat that particular chicken. तो क्या है, मैं यही बता रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट, उनका अपना एक सिंगल सिग्नेचर डिश होता है. हर एक आइटम टेस्ट नहीं होता, हर एक आइटम आपका मतलब सब आइटम एकदम फर्स्ट क्लास होता है नहीं. एक आइटम है जो वो पूरा खा जाता है. रमेश कुल्फी में दाल चावल भात सब्जी जो खाइए आपका घर का खाना लगेगा, लेकिन क्या है जो अलग करता है, वही मटन अट्ठे जो बिना पानी से बनता है. इसी तरह से हम जो जॉब एस्पिरेंट्स है, आप लोग जैसे जॉब एस्पिरेंट्स है या कोई फ्रेशर जो जॉब के लिए खोज रहा है, उसका सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट जो कि देखा जाता है वो है उसका रिज्यूमे. उसका रिज्यूमे जैसे विजिटिंग कार्ड होता है. रिज्यूमे आप जितने अच्छे तौर तरीके से एक्सेप्शनल लेवल में आप बनाएंगे, उतना ही चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपका ज्यादा होगा. इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट का रेफरेंस देके मैंने ये समझाने की कोशिश किया है कि आप हर एक में आपका कोई टैलेंट है. एवरीबॉडी, भगवान ऐसा नहीं है कि किसी को बिना टैलेंट दिए इस दुनिया में भेज दिया है. बस अपना टैलेंट को निहारना, उसमें काम करना और उसे को एक्सप्लोर करना इज द मेन मोटो. जो हम जिंदगी भर सर्च करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाए, हमें पता नहीं चलता कि मेरे अंदर टैलेंट क्या था.
ठीक है, तो यही चीज आप अपना रेज्यूमे में जितने अच्छे, जितना प्रिसाइज फंटास्टिक वे में आप जितना अच्छा बनाएंगे, उतना ही अच्छा आपका सिलेक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको तो पहचानते नहीं है, तो पहली मुलाकात में आपसे कैसे पता कर लेगा कि ये बंदा अच्छा है? He is a very skill oriented person, he is a very knowledgeable person, he has got many experiences। कैसे जानेंगे? वो ही आपका रिज्यूमे देख के। इसीलिए रिज्यूमे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक डॉक्यूमेंट to prove yourself in front of an HR that yes, I am capable enough। जानते हो, HR के पास हर एवरी डे थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे आता है। वो सिर्फ रेज्यूमे में तीन चीजें देखता है। सबसे पहला, आपका एक्सपीरियंस। वो पहला पन्ना में कभी नहीं स्ट्रेस करेंगे। पहला पन्ना में वो आपका नाम, एज, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके कंपनी के लिए, कि आपका एज अगर 40 पार हो गया तो आपको लेके क्या फायदा है। तो सबसे पहला योर नेम, एज, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पन्ना में चला जाएगा, सेकेंड पेज में योर एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ क्या क्या काम आप किए हो। थर्ड, क्वालिफिकेशन। बस यही तीन इंपॉर्टेंट पिलर है आपको सिलेक्शन में। उसके बाद आप जो डालिए उसमें, ये स्किल, वो स्किल, ये वो कभी उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जैसे उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर क्या क्या स्किल है मैं खोद के निकाल लूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि वकील, HR, डॉक्टर और अपने पेरेंट्स, इन चारों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर एवर गोइंग टू लाई इन फ्रंट ऑफ दिस फोर पीपल। लॉयर, डॉक्टर, अगर डॉक्टर को झूठ बोलेंगे, डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर पाएगा। लॉयर से आप झूठ बोलोगे, अगर कुछ आप फंस गए तो लॉयर आपको निकाल नहीं पाएगा। पेरेंट्स से कभी तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HR, कंपनीज का जो HR आते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। आपके माइंड गेम के साथ, आपके साइकोलॉजी के साथ वो खेलते हैं। दे प्ले विथ योर माइंड। So don't make them fool and don't try to act over smart in front of them। Whatever the questions they're asking, please give answer in a straight one word। जितना ज्यादा घुमाओगे आंसर को, उतना ही आपको कठिनाई झेलना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे, अगर A+B का होल स्क्वायर मांगा है, तो आप A+B का होल स्क्वायर ही बताइए, उससे ज्यादा नहीं। Whatever the question, according to the question, you need to give your answer। That is the way to give your presentation in front of an HR। तो HR तो वो स्किल आपका निकाल ही लेंगे। तो HR ये तीन जगह पर सबसे स्पेसिफिकेशन, ये तीन जगह पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर। योर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक झलक दिखेगा। डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। सबसे पहले एक्सपीरियंस अगर आपके है तो वो देखेगा कहाँ कहाँ क्या काम किए हो। सैलरी कितना आप लिखे होंगे कि मेरा एक्सपेक्टेशन सैलरी इतना है, मुझे इतना मिल रहा था, ठीक है। अगर नहीं मिला, आपसे पूछवा लेंगे। और गलती से भी सैलरी के मामले में वहां झूठ मत बोलना। 1-2 हजार, 5 हजार बढ़ा के बोलना है वो बोल देना, लेकिन एक बार में मत बोलना कि 1 लाख बढ़ा दीजिए। आप जिस तरह का मजाक कर रहे हो ना, वो आपसे ज्यादा आपसे मजाक करेंगे। फैक्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू, हम लोग का मतलब हम लोग का कॉलेजेस में प्लेसमेंट जब होता है, वी हैड टू सिट विद द HR। हम लोग HR के साथ बैठते हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज, एंड वी नो कि वहां क्या होता है, किस तरह का इंटरव्यू होता है। ओके, सो प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। क्या हुआ? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो, इतना हिचकिचाहट क्या है, बोलो। सर अभी मेरा ऐसे अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम होता है, ठीक है। अभी हम MBA करके जब अपना रेज्यूमे HR को देंगे, तो उस समय सर मतलब कि फ्रेशर के हिसाब से मेरा सिलेक्शन होगा कि एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्सपीरियंस तो ऑन ग्राउंड मेरे को 9 साल का है। सबसे पहले बताइए कि
HR आपका जान पहचान का है? आप दूसरे जान कंपनी पहचान में के तो आप दूसरे कंपनी में जा रहे हो कि वही कंपनी में रहना है? सर हम बिरला में स्विच करेंगे। इसमें बिरला बिरला ओपस। बिरला ओपस। अगर बिरला ओपस जाना है मतलब न्यू कंपनी, तो डेफिनेटली वो 9 साल एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। ओके। आपका 9 साल एक्सपीरियंस काउंट होगा, लेकिन एमबीए करने के बाद जो आपको जॉब मिलने वाला है वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। इट विल बी काउंटेड एज अ फ्रेशर, बिकॉज जो 9 साल आपने बिताए हैं वो एमबीए के बगैर आपने बिताए हैं। समझो बात को। आपने जो 9 साल बगैर काम किए हो, बगैर एमबीए किए हो, ठीक है, तो वो 9 साल आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बीबीए काउंट काउंट करेगा। बीबीए भी सर काउंट नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं काउंट होगा? बीबीए आपका आपका 9 साल का ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ योर 9 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आप बीबीए कंप्लीट कर चुके हैं ना बीबीए में नहीं कंप्लीट कर चुके थे? किए हैं सर। आप ही तो तो ठीक है, डेफिनेटली। हाँ, तो ठीक है। तो वो बीबीए अगर कंप्लीट किए हो तो ठीक है, वो काउंट होगा। लेकिन एमबीए अभी आप 9 साल के एक्सपीरियंस पे एमबीए अभी पढ़ाई कर रहे हो और साइड में काम कर रहे हो, तो 9 साल एक्सपीरियंस आपका डेफिनेटली काउंट होगा। लेकिन आप एमबीए अकॉर्डिंग कुछ जॉब आपको लिए अगर आप खोज रहे हो तो आपको वो फ्रेशर के तौर पे ही काउंट करेगा। सपोज से फॉर एग्जांपल आप एमबीए कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव कोई पोस्ट आपको देगा, वेरी हायर पोस्ट दे विल गोइंग टू ऑफर टू यू। ओके, वेरी हाई मतलब एज अ टीम सुपरवाइजर, एज अ टीम लीडर। मतलब टीम लीडर मतलब क्या? टीम लीडर उसका ऊपर, टीम लीडर उसके ऊपर। तो आपको अगर देंगे तो क्या होगा कि आपका तो उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना। आपका फील्ड एक्सपीरियंस 9 years का यहाँ यहाँ है, लेकिन जिस लेवल में आप जा रहे हो आफ्टर एमबीए उसका एक्सपीरियंस तो आपको नहीं है ना, तो वहां पर आपको बीइंग अ फ्रेशर ही काउंट करेंगे। एम आई क्लियर? यस सर। एनी मोर क्वेश्चंस तनुजा? एनी क्वेश्चंस? तो सर पैकेज वगैरह सर हम लोग के इंटरव्यू के बिहाफ पे डिसाइड होगा या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सपीरियंस इस कंडीशन में? हाँ, एक्सपीरियंस भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट योर positions and communications and the way you give your interview. On the basis of that, they will going to give, provide you the salary. अच्छा। Okay, ओके they will going to provide you the salary. ओके So, सर। okay, ठीक है। तो ये आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन। क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन तो मैंने समझाया क्या है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में एक्चुअली लिखना क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरियाज है, ये हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। थोड़ा सा हो सकता है इस पावर पॉइंट में थोड़ा सा बहुत कुछ चीजें मेंशन नहीं है। सबसे पहला जॉब स्पेसिफिकेशन कवर में जो होता है वहां पर आपका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। After that, you will come down to write down the educational qualification. Minimum educational qualification requirements according to the requirement of the organization. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लिखता है एमबीए, तो अगर आप एमबीए नहीं हो तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो क्राइटेरिया मैच करना जरूरी है। मैं एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि इस पोजीशन में आपको रखना, अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो, तो मिनिमम क्राइटेरिया उस ऑर्गेनाइजेशन का एमबीए होता है। अगर आप एमबीए पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं हो, परस्यू कर रहे हो, फिर भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर दिक्कत है, नहीं होगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट thing you need to understand. Necessary work experience. Suppose, say, for example, as now you are telling me that you have a 9 years of a field experience. Really very good. 9 years of field experience is many means many a thing, a lot of things, a lot of years. Okay, it's a very strong experience that you are having. So you need to mention those experiences.
Apart from that, though you have an experience, apart from that you need to mention the skill part. अब स्किल में क्या क्या है, देखो स्किल डिवाइडेड है यहां पर, हमेशा याद रखना। टेक्निकल एक स्किल होता है, सॉफ्ट एक स्किल होता है, सॉफ्ट स्किल एक स्किल होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, ये एक सॉफ्ट स्किल है। कंप्यूटर, ये आपका एक सॉफ्ट स्किल है। प्रोग्रामिंग, दिस इज अ सॉफ्ट स्किल। अपार्ट फ्रॉम दैट और एनी स्पेसिफिक स्किल, मतलब आपका कोई हार्ड स्किल है आप में, जैसे लिसनिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, दिस ऑल आर कॉल्ड द हार्ड स्किल। टीम लीडर, टीम वर्क, okay, these all are the hard skill you need to mention. After that, knowledge, देखो नॉलेज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में और नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है बोलो तो, नॉलेज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपका एमबीए, बीबीए, ग्रेजुएशन, 10+2, these all are your qualifications. But knowledge is something different. Knowledge means, suppose you have a knowledge of Python, you have a very good knowledge of C++ certification codes, you have know the Tally, you have done the certification course on Tally. These all are the knowledge. These all are the knowledge. ये क्वालिफिकेशन में नहीं गिना जाएगा, ये नॉलेज में गिना जाएगा। आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आपको टैली का नॉलेज है, आपको पाइथन का नॉलेज है, आपको जावा का नॉलेज है, दिस इज द नॉलेज, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन जो होता है, जो आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या स्कूल से जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, वो है आपका क्वालिफिकेशन। तो डिफरेंस समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस यही है, जो आपको कॉलेज से मिलता है, जो आपको स्कूल से मिलता है, वो आपका क्वालिफिकेशन गिना जाता है। और नॉलेज, जो आप पढ़ाई करने के बाद जो आपने एक्स्ट्रा कुछ किए हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, दैट इज जैसे टाइपिंग स्किल, वो आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आपका नॉलेज है, आपको टाइपिंग आता है। कंप्यूटर नॉलेज, वो आपका नॉलेज है, वो आपका क्वालिफिकेशन नहीं। आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा किया है, दिस ऑल कॉल्ड द नॉलेज। समझ में आया? यस सर। Then come to the next is abilities. What is this abilities? Physical, mental और other abilities. आपका फिजिकल एबिलिटीज कैसा है, मेंटल एबिलिटी कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, मतलब एबिलिटीज का मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप में स्ट्रेंथ कितना है, आप में वीकनेस कितना है। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, वीकनेस में ऐसा कुछ लिख देते हैं कि वो वीकनेस बहुत बड़ा वीकनेस माना जाता है। वीकनेस को ऐसा लिखो कि वो आपका स्ट्रेंथ में गिना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक वर्काहोलिक पर्सन हूं, जब तक मेरे में एक वीकनेस है, क्या, मैं एक वर्काहोलिक पर्सन हूं, वर्काहोलिक, जब तक कोई चीज खत्म नहीं होता तब तक मैं उसके पीछे लगा रहता हूं, जिसकी वजह से बहुत सारा चैप्टर्स, बहुत सारा चीजें मेरा छूट जाता है। ये है मेरा वीकनेस, लेकिन ये वीकनेस रहते हुए भी मेरा स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है ना? अपना वीकनेस अगर दिखाना है, अगर आपको अपना वीकनेस बताना है, तो वीकनेस इस तरह से बताओ कि वो आपका स्ट्रेंथ में गिना जाए, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, दिस ऑल आर द पर्सनल ट्रेट। तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन। आप जब अपना रिज्यूमे बनाओगे तो इसी पॉइंट्स को आपको, इस तरह का पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो मैं आपको रिज्यूमे बनाना सिखा देता। एंड प्लीज फॉर द गॉड सेक, कभी भी चैट जीपीटी या कोई एआई टेक्नोलॉजीज यूज करके अपना रिज्यूमे मत बनाइएगा, आई एम टेलिंग यू, otherwise you will be in a big danger, because HR know very well nowadays students prepare the resume with the help of chat gpt, और chat gpt एक जो कंटेंट देता है, वो कंटेंट 100% ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। कुछ ऐसा वर्ड है जो उसका मतलब आपको नहीं मालूम है। मैं आपका एक्सपीरियंस बताता हूं। एक बार कॉलेज में ही,
ऐसा कुछ चल रहा था इंटरव्यू, एंड एक लड़का ने क्या किया, पूरा चैट जीपीटी से छाप के रिज्यूमे बना दिया, बढ़िया से रिज्यूमे बना। उसको पता नहीं है जो जो वर्ड्स वहां पर लिखा है उसका मतलब क्या है। गया, फर्स्ट इंप्रेशन तो जबरदस्त था, अरे वाह बहुत अच्छा रिज्यूमे बनाए हो। अब जैसे रिज्यूमे का पेज पलटने लगा तो वर्ड सब देख के चौंक गया। ठीक है, उससे जब उसको क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपने ये चीज यहां पर लिखे हो, क्या है इसका मतलब बताइए थोड़ा सा, अब जवाब नहीं दे पा रहा है, अनेबल टू आंसर। फिर लास्ट में एचआर ने उससे कबूला, एचआर ने खुद उससे मुंह से बुलवाया कि आप स्ट्रेट अवे बताइए कि आपने इस चीज को कहां से कॉपी किए हो। और उसने बताया, सर आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम चैट जीपीटीज यूजिंग एआई टेक्नोलॉजीज। तुरंत रिज्यूमे मुंह पे फेंक दिया, गेट आउट, और दोबारा इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में मत आना, डिबार्ड कर दिया। ही वॉज बिन डिबार्ड। और एक बार अगर आप डिबार्ड हो जाओगे तो आप कभी उस कंपनी में के लिए इंटरव्यू नहीं कर पाओगे। तो बी केयरफुल इन यूजिंग ऑल दोस थिंग। ओके, आप हेल्प लेना चाहते हो, कैन टेक ए हेल्प, लेकिन कॉपी मत करना, डोंट कॉपी इट। और रिज्यूमे जितना हो सके अपने आप से बनाइए, अपने तौर तरीके से बनाइए, वो बहुत अच्छा है। कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? सर आप नेक्स्ट क्लास में सर आप कैसे रिज्यूमे बनाते हैं तो एक सैंपल आप हमें दिखा पाएंगे? मैम सैंपल, सैंपल ठीक है मैम, मैं एक काम करूंगा, मैं भेज दूंगा मैम को, सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, मैम आपसे शेयर कर देगा। मैम विल गोइंग ओके टू ओके। शेयर इट विद यू। ज्यादा ना रिज्यूमे में या सीवी में ज्यादा कुछ ना ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि जिससे आपको ओवरबर्डन हो जाए, उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ना रहे, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका मेन एरिया है, जो आपका सबसे, अब देखो आपका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब 9 इयर्स में, ड्यूरिंग दिस 9 इयर्स अगर आप हर एक एक्सपीरियंस लिखने रहेंगे तो वो तो पूरा किताब बन जाएगा। अगर यस सर। अगर मैंने आपसे कहा कि 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लिखिए, ये 9 साल क्या किया, क्या क्या काम किया, तो आप अगर लिखने के लिए जाओ छोटा मोटा किताब बन जाएगा, तो कोई पढ़ने के लिए कोई थोड़ी इंटरेस्टेड है। हाँ, आपका इंपॉर्टेंट जो वर्क है, जो आप स्किलफुल काम किए हो, इंपॉर्टेंट मेन, की पॉइंट वो, सब टच करना है। हाँ मेन वो चीज आपको लिखना है इन द रिज्यूमे, दैट विल गोइंग टू फाइंड इट आउट इंटरेस्टिंग टू देम, दे विल गोइंग टू फाइंड आउट इंटरेस्टिंग टू देम, वो इंटरेस्टिंग वर्क। लेकिन आप अगर पूरा 9 साल आपने क्या किए हो, एक एक दिन, पहला दिन मैं ऑफिस गया, ये काम किया, ये तो वो तो पूरा किताब बन जाएगा, वो कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। नोबडी, उतना टाइम कहाँ है, मैंने कहा ना, मैंने ये सब कुछ अपने फ्रंट में जाके देखा है, एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना, कि उनका पास उतना टाइम नहीं। वो जब बैठते हैं, उनका एग्जीक्यूटिव जो आता है, एचआर का असिस्टेंट जो आता है, वो एक दो डस्टबिन रखा हुआ रहता है, दो कार्टून बॉक्स रखा हुआ रहता है उनके पैर के सामने, जिसको सिलेक्टेड करना है वो एक बॉक्स में, जिसको नहीं सिलेक्ट करना है वो एक बॉक्स में फेंक देते हैं। और वो सिर्फ 3 चीजें देखते हैं, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ओके। अगर डेट ऑफ बर्थ ओवर हो गया तो फिर आपको नहीं लेगा, फेंक देगा। अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तो रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में डायरेक्टली वो एक्सपीरियंस वाला पार्ट में आ जाएगा, क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या आप काम किए हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन, दैट्स ऑल। उसमें और कोई, आपको फुटबॉल खेलने में अच्छा लगता है, आपको आउटडोर गेम अच्छा लगता है, आपको पिक्चर लेना अच्छा लगता है, आपको ये हॉबीज अच्छा लगता है, दे नेवर एवर बॉदर ऑल दिस नॉनसेंस। यस, द राइट वर्ड आई एम यूजिंग इट, दिस ऑल आर बुलशिट एंड नॉनसेंस। कोई अपना ये लिखता है मेरा हॉबीज क्या है, क्या यार, व्हाट इज दिस, व्हाई, वो आपसे पूछेंगे, पढ़ेंगे क्या हॉबीज। अगर उनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा, इफ दे फाइंड यू दैट yes you are skillful enough to join my company, then they will going to ask you, then they will going to entertain you that what are your hobbies, what type of food you like most, then they will going to ask you this type of question after everything process is over. Otherwise in front of the interview, when the interview is going on, they never ever going to ask you what is your hobbies, which food you like the most. और जिसको सिलेक्शन नहीं करना होता है ना, समझ लो कंपनी में ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी होता है कि जो कैंडिडेट चाहिए था उसका सिलेक्शन हो गया है। अब दिखाने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना, तब आपको इस सब अनशन सवाल करेंगे। आपको खाने में क्या पसंद है, आपको क्या मूवीज अच्छा लगता है, आपको हीरोइन कौन सा अच्छा लगता है। जब ये सवाल आपसे करने लगे ना, तब समझ जाइए कि उसको जो क्राइटेरिया चाहिए था, उसको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब टाइम पास के लिए मेरे साथ ये सवाल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, आप बोल के निकल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपका भी एक रेस्पेक्ट है,
आफ्टर ऑल आप क्वालिफिकेशन अपना सब कुछ करके ही वहां पर ज्वाइनिंग के लिए आए हो, नहीं ले अलग बात है, लेकिन आप अपना रेपुटेशन को तो हैम्पर नहीं कर सकते हो ना। तो जब आपसे ये सवाल करेंगे आपको खाने में क्या पसंद है, चलिए बोल दिए, आपको कौन सा मूवीज अच्छा लगता है, कौन सा हीरोइन अच्छा लगता है, कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, समझ जाइए कि इंटरव्यू जो हो गया है, जिसको सिलेक्शन करना है वो कर लिया है। अब मेरे साथ ये टाइम पास कर रहा है दिखाने के लिए कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, क्योंकि कंपनी को दिखाना पड़ता है। उस कंडीशन में सर क्या करेंगे? Okay, thank you, sir. It's nice talking with you. Now I have a lot of work to do. Thank you, sir, for the interview. I need to leave. I may go now. ठीक है, उनको तो निकल जाइए वहां से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। You already known that interview is done. Interview is over. आपका सिलेक्शन दूसरे का हो चुका है वहां पर। अब मेरे साथ तो टाइम पास कर रहे हैं। ये सब सिम्टम है जो आपसे बताता है कि ये सब फैक्ट आंखों के सामने मेरे हुए हैं यार। दिस ऑल आर द फैक्ट। और वो जो बेवकूफ है वो बंदा, मतलब क्या बोला, हंस के जवाब दे रहा है सर, वो अपना दिखा रहा है अपना कर्तव्य। सर मुझे ये मूवीज अच्छा लगता है, ये मूवी, ये काम अच्छा लगता है, सर मुझे ये खाने पसंद है, सर इसमें मिर्ची डाल के खाइएगा। मतलब क्या बोलूं, मैं उसके तरफ बोल रहा हूँ, मुझे उठ के चला जा, प्लीज गो अवे, इंटरव्यू हो चुका। वो सुनना नहीं चाहता, इंप्रेस करने का कोशिश में है। लास्ट में जब निकल कर मुझे बोला सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब एक छापड़ मारेंगे उल्लू पट्टा कहीं का। तुमको पता नहीं है कि कैसा इंटरव्यू होता है? वो सवाल है आपसे, तुमसे एक भी सब्जेक्ट का नॉलेज का क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ पूछा, कहाँ क्या काम किया उसके बारे में पूछा, किस कंपनी में थे, क्या काम किए थे, पढ़ाई कहाँ से किए, इंटर्नशिप कहाँ से किए, प्रोजेक्ट कहाँ से किए, इसके बारे में कुछ पूछा? डायरेक्ट फिल्म का क्वेश्चन पूछा, खाने में क्या पसंद है पूछा, तुमको घूमने कहाँ अच्छा लगता है पता है, तुम्हारा डेस्टिनेशन कहाँ है, ये सब पूछा। ये समझ जाना चाहिए ना तुमको, बेवकूफ की तरह वहां बैठे हो आधा घंटा से, तुम वही बोरिंग कर रहे हो, वो बोर हो रहा है, तुम बोरिंग के जवाब पे जवाब दिए जा रहे हो। तब उसको दिमाग में, अरे सर सही में आप बोले, आप बोले जाओ दूसरा नौकरी ढूंढो, दूसरा कंपनी के लिए बैठो, ये कंपनी में हो गया है। तो दिस आर द थिंग्स ना, हम लोग को पता चल जाता है कि किसका किसका क्या सिलेक्शन हो गया है, प्रोसेस क्या बाकी है, क्या नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका हो गया, इट्स ऑलमोस्ट डन। एकदम एक झलक में बता सकते हैं, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन, उसके साथ इंटरेक्शंस, पता चल गया। अगर इंटरव्यू ने आपसे 10 मिनट 15 मिनट कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछा, समझ जाइए कि मुझे चाहिए, वो अभी चाहिए, उसको मिला नहीं है, आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। अगर एक दो राउंड इंटरव्यू, टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ, ओके गो। एक सवाल आपसे पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्लीज डिस्क्राइब योर सेल्फ, उसके बाद बोल दिया आप घर जाइए, समझ जाइए कि हो गया आपका इंटरव्यू, वो आप उतना टाइम नहीं लेगा। दीज आर द थिंग्स आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जॉब स्पेसिफिकेशन। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नो सर। तनुजा, एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई सवाल नहीं? सर आप इतना अच्छा बता दे रहे तो मैं क्या ही पूछा, आप मेरा डाउट ही क्लियर कर दे रहे। तू पक्का सुन रही है कि टीवी देख रही है, पहले बता। सर सुन रहे हैं, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू का बताया कहानी, तो मैं सुन ही रही हूँ। यस, ये सब टेक्निक मैं बता रहा हूँ, दिस ऑल आर द टेक्निक यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारा कुछ चीजें है, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज इज अ बिग साइंस, उससे पता चलता है आपको। अगर हेडफोन में आप, जैसे ही आप इंटरव्यू में अंदर गए, बैठा, तुरंत वो फोन निकाल के आप बात करने लगा, आपको कोई आपके तरफ देखा भी नहीं, इट डजंट केयर अबाउट यू वेदर यू आर कमिंग और नॉट। आपने जैसे कहा मे आई कम इन सर, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट साइड, यू आर स्टैंडिंग, एंड आफ्टर दैट उसने देखा, बोले बैठ जाइए, उसके बाद वो 5 मिनट 10 मिनट बियॉन्ड टेकिंग अ टाइम, वेस्टिंग योर टाइम एंड गोइंग ऑन मेकिंग अ कॉल एंड और द फोन। समझ जाना चाहिए कि उसका सिलेक्शन अदर्स ये में हो गया है। अब जब कॉलेजेस में ऑन कैंपस होता है ना, ये सब देखने को मिल जाता है, दिस ऑल आर द थिंग्स, ऑन कैंपस जब होता है ये सब देखने को मिल जाता है, किस तरह से वो लोग, किस तरह से ये करता है, वो मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए वो इंटरव्यू ले रहा है, अदरवाइज वो दूसरे यूनिवर्सिटी, दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे कहीं पर भी जाके उसका सिलेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। तो दीज आर द थिंग। अगर आपसे कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कंटिन्यू वो कम्युनिकेशन कर रहा है ऑन द टॉपिक, ऑन द एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है, उसको अभी भी फुलफिल नहीं हुआ, उसको चाहिए, ही नीड द जॉब, ही नीड द रिक्वायरमेंट्स, उसका अभी तक फुलफिल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ है, उसको अभी जितना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो इस तरह से समझ जाना चाहिए। तनुजा, आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप करने के बाद
आप ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जो भी आप करोगे, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, ये सब जान लो। दिस ऑल आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद बहुत सारा ड्रेस कोड्स होता है, वो सब अलग बात है, चलो वो सब बाद में बताएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, जॉब डिजाइन। It is, what is this? The process of creating and defining a job responsibilities, duties, and specification to meet organizational needs and employee satisfaction. This is called job designing. ये HR का पार्ट है. This part is for HR part. दोनों पार्ट है. This part is HR part और ये पार्ट जो होता है स्टूडेंट का भी पार्ट है. सॉरी, मैंने एक पार्ट बोला, ये दोनों पार्ट है. जॉब डिजाइनिंग जो होता है एचआर का भी पार्ट है. क्लासेस में आपको बताया कि सपोज रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का वैकेंसीज निकला. अब उस ऑनलाइन वैकेंसीज को किस तरह से डिजाइनिंग करेंगे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, डिजाइनिंग कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग. एचआर भी इसी तरह से जॉब डिजाइनिंग करते हैं. ठीक है, कि अब जॉब डिजाइनिंग में क्या क्या क्राइटेरियाज रखना है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मुझे रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट का फीडबैक कैसा, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट्स कैसा है, वो मुझे रखना है. स्टूडेंट का स्किल कैसा है, ये मुझे डिजाइनिंग करना है. स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कितना है, ये मुझे डिजाइनिंग करना है. ये तो हो गया एचआर का. अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट जब अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे तो उसको भी डिजाइनिंग आना चाहिए कि किसके बाद, कौन सा स्टेप के बाद मैं दूसरा लिखूं. फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर you need to put your name in a bold capital letter, and after that your email id, and after that your phone number. ये पहले पेज के एकदम कॉर्नर में होना चाहिए विद अ बिग फोटोग्राफ. फॉर्मल ड्रेस के साथ एक हाफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहां पेस्ट नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा 1.5 लाइन न्यू टाइम रोमन में आपका ये होना चाहिए. उसके बाद थोड़ा सा लाइन स्पेस नीचे करके उसके बाद आपका आ जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट इज द कैरियर ऑब्जेक्टिव? आप पहुंचना क्या चाहते हो, पहुंचना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है. ठीक है, यू नीड टू मेंशन द कैरियर ऑब्जेक्टिव्स. आप उसके बाद आ जाते हैं आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द एक्सपीरियंसेस पार्ट. एक्सपीरियंस क्या क्या है आपका, मेंशन कीजिए उसको. मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है, यहां इतना एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा इलैबोरेटली कीजिए. नेक्स्ट आ जाइए आपका क्वालिफिकेशन, व्हिच इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका है उसको सबसे टॉप में रखना है. पहले क्या करते थे, सबसे जो कम क्वालिफिकेशन था कैसे स्टार्ट करते थे, पहले मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद क्लास 12, उसके बाद ग्रेजुएशन. गलत फॉर्मेट. सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है करंटली आप लोग क्या, करंटली यू आर परस्यूइंग योर एमबीए फ्रॉम सॉन यूनिवर्सिटी और कॉलेज व्हाटएवर, आप उसको लिखिए. उसके बाद नेक्स्ट बीबीए. आपने बीबीए कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाए, कहां से क्या कंप्लीट किए थे, क्या आपका पेपर था, उसको स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए. नेक्स्ट क्लास 12. बस क्लास 10 कभी मेंशन नहीं करना चाहिए. क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए, दिखने के लिए होता है. इट इज एज अ प्रूफ टू चेक योर डेट ऑफ बर्थ, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. क्लास 10 का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है. आप मिला के देख लीजिए, कहीं पर भी आपको बोलेगा भाई क्लास 10 का सर्टिफिकेट जमा कर, यहां पर जरूरत है, नहीं, नेवर, कभी नहीं. आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बस वही उतना. तो इस तरह से अब उसको लिखने के बाद आपका स्किल क्या है आप लिखिए उसे. उसके बाद आप लिखिए आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, किस रीजन से, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फादर, आपका मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, हो गया आपका. उसके बाद योर जेंडर, आपका पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर जो है वो. उसके बाद सिग्नेचर एकदम लेफ्ट कॉर्नर में होना चाहिए. कंप्लीट. ये है पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड डिजाइनिंग ऑफ अ रिज्यूमे. दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड डिजाइनिंग ऑफ अ रिज्यूमे. हमेशा याद रखना 11.5 से 12 आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए. और जिसमें लिखेंगे वो होगा न्यू टाइम रोमन. एरियल ब्लैक नहीं, एरियल नहीं, कुछ नहीं,
बहुत जन होता है इसमें लिखता है, अरे यार, एरियल ब्लैक, एरियल, या फिर एरियल थिन, या फिर और एक है यार, ताहुमा। ताहुमा वो एक्सेंट एक्सेप्टेड नहीं होगा। ताहुमा वो रिटन जो स्क्रिप्ट है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, स्किल ये रिटन जो फॉन्ट साइज है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ताहुमा ये सब नहीं। न्यू टाइम रोमन उसमें लिखना है, और स्पेस जो होगा 1 से लेके 1.1 या 1.5, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द करेक्ट डिजाइनिंग ऑफ अ रेज्यूमे। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? इज इट यस सर। क्लियर टू यू? एनी डाउट तनुजा, एनी डाउट? सर बस एक सैंपल प्लीज मैम को सेंड कर दीजिए, मुझे देखना हाँ सर, ठीक मतलब है। हम भी अपना रिज्यूमे ऐसे सेट करेंगे सर। हाँ लेकिन कृपया करके वो सैंपल जो मैं भेजूंगा उसमें फिर उसी को चीज को कॉपी करके चल मत जाना। नहीं नहीं सर। आप हेल्प लीजिए कि किसके बाद क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसा मुझे लिखना चाहिए, किसके बाद क्या सीरियल नंबर आना चाहिए। दैट इज वेरी ओके, बट उसी को पूरा एकदम मतलब मेरा नाम मतलब किसी को नाम हटा के उसी का अपना नाम डाल देना। ओके। ओके। यस। ठीक है चलो, तब आज यहीं तक रहने देते हैं। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, एनी यहाँ तक डाउट? तो नहीं है। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर।